And so let's start our today's session. In the yesterday session, we had a kind of very good discussion on how exactly the fixed overhead are going to behave and what are the uses of marginal costing so far as decision makings are concerned. Now in today's session, we first try to understand, obviously, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसकी थियरी डिस्कस करना इज समटाइम्स वेरी आई से बोरिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. सो आज हम एंश्योर करेंगे कि फॉर्मूला लर्न करना भी स्टार्ट कर दें विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ इट विल फंक्शन. लेकिन उससे पहले लेट मी शेयर अ स्क्रीन सो दैट वी कैन हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. I'm audible to everyone, no? Yes, sir. Okay. So whenever you have any issue relating to internet connectivity, just kindly please let me know. Sometimes the LAN of my office does not function properly, though I have 2-3 internet connection, but still sometimes the technology is useful. Sometimes it's creating a hurdle. So just immediately let me know whenever there is a connectivity issues. Fine. So the first thing that we are going to start in the today's session is understanding a difference between marginal costing and absorption costing. Marginal costing and absorption costing. First of all, let's understand what is an absorption costing, what is a marginal costing. So in the first session itself, we have developed an understanding that marginal costing is nothing but a cost of producing an additional unit. Cost of producing additional unit. So whatever cost which has increased marginally because of any of our decision, that is something which is known as a marginal costing. While under absorption costing, we try to absorb each and every expenses on some suitable way. So absorption costing, अगर हम देखें ना, that is more traditional approach. The marginal costing is more recent approach as compared to absorption costing. उतना भी नया नहीं है marginal, लेकिन as compared to absorption costing, it is a more recent approach. And the decision making, whenever we are taking, if we continue to use an absorption costing methodology, our decisions sometimes would be not useful, or the data which is being given by this absorption costing may not be useful, or if we are taking any decision on the basis of this absorption costing, then our decision might be in some cases go in a wrong direction and leads to the losses also. Now when we are looking at an absorption costing, marginal costing, fundamental difference. Please understand that under an absorption costing, the cost has been segregated function wise. The cost has been segregated function wise. ऐसा नहीं है कि आप जब कॉस्ट शीट बनाओगे, ये भले इनकम स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन आप जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो फंक्शन वाइज हमें बाइफर्केशन नहीं करना है. ऑब्वियसली मुझे फंक्शन वाइज बाइफर्केशन करना है whenever I am doing the valuation of inventory and all that. So absorption costing में function wise segregation इस तरीके से the overhead or the cost which we are incurring has been split into categories like production cost. So whatever expense or whatever money we are going to spend on the production, that is known as a production cost. Then there is administration cost, selling and distribution cost. ये मेजर 3 I'll say डिवीजन है कॉस्ट के: प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. और जितने भी एक्सपेंसेस हम करेंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्सपेंस इटसेल्फ कि ये जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं वो
इसमें से कौन से फंक्शन का है, मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी रिलेटेड है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट है। और अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंस को हमारे कॉस्ट शीट में प्लॉट किया जाए। सो नाउ the absorption costing just does a segregation function wise ही segregation करता है। उसके अंदर अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमारी दो टाइप की होगी, एक होगी वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी होगी हमारी फिक्स कॉस्ट। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, बोथ ऑफ द थिंग्स वुड बी recorded at the same place under the head of production cost. So production में क्या क्या यूज होता है, direct material यूज होता है, so this is your direct cost which is again a variable cost, direct labor cost which again is a direct cost, a part of your variable cost, variable लेकिन कौन से वाले overheads, manufacturing overheads again would be plotted here, and then the next thing comes, that is fixed manufacturing overhead, fixed overheads लेकिन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे सिर्फ हमने फंक्शन वाइज सेग्रीगेशन किया, और मेरी जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने यहाँ पे डिराइव किया, which is actually a summation of this 4 item that also includes the amount of fixed overhead which has been absorbed. एब्जॉर्ब क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स एट ऑल द लेवल्स, उसके कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं, मतलब वो किस पे अलोकेट करे वो आइडेंटिफाइड नहीं होता है पहले से। सो वी नीड टू फाइंड आउट अ सुटेबल बेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन एब्जॉर्ब दिस फिक्स्ड ओवरहेड, एंड देयरफॉर द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड प्लॉटेड हियर एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन कॉस्ट, and therefore it also becomes a part of your cost of production. अब आपकी जो इन्वेंटरी होगी, that inventory would be valued and on the basis of this rate. तो आपने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए, और आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए, आपने 10,000 यूनिट बनाए हैं, तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट वुड बी ₹10, सिंपल एज दैट, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट वुड बी 10 रुपीस। तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट करंट पीरियड का, ध्यान से समझना, करंट पीरियड का प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ इस तरीके से फाइंड करो। अब यहां पे मुझे एडजस्टमेंट देना होगा opening and closing stock of goods which are already produced and now which are remaining, because whatever we are going to produce is not going to sell, there will be something which we will have in an inventory. So inventory valuation again becomes very crucial for us to understand. There are two type of inventories, if you can see, there would be an opening stock and there would be a closing stock. opening stock है और closing stock भी है, लेकिन दोनों का वैल्यूएशन अलग तरीके से होता है, कोई ज्यादा नहीं दिमाग दौड़ा रहा है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अलग अलग होता है, कैसे अलग अलग होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओपनिंग स्टॉक्स आर बीइंग वैल्यूड एट व्हाट कॉस्ट, एट अ प्रीवियस पीरियड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, जबकि क्लोजिंग स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट योर करंट पीरियड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, करंट पीरियड। अब सुनो ध्यान से, हम ये करते क्यों, हम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक्स का एडजस्टमेंट देते क्यों हैं? हम ये एडजस्टमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखो तो वहां पे आपने कितना प्रोड्यूस किया उस हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड नहीं करता है, आपने कितने यूनिट बेचे उस हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड होती है। So whatever you have produced, if you have sold everything and there is nothing left in a stock, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन if you are maintaining a stock also, then your profitability is required to be calculated on the basis of number of units that you are selling and not the number of units that you are producing.
and that is the reason that why after this cost of production we need to give an adjustment, and this adjustment is adjustment relating to stock. तो ये स्टॉक का एडजस्टमेंट हमें इसलिए करना होता है, और एडजस्टमेंट क्या होता है? दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव प्रोड्यूस, अभी प्रोड्यूस किया, फिर भी आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है, तो आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, सो देयरफॉर द ओपनिंग स्टॉक हैज बीन एडेड। आपने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बनाए, आपके पास ऑलरेडी 10 यूनिट स्टॉक में पड़े हुए हैं। सिंपल सा इक्वेशन है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस is for example 100, you already have and 10 units in a stock, so number of unit as a part of a opening stock is for example 10. That means on a particular day you have a stock of 110 items. This is simply in a number term, it's not in money, it's not an amount, it is just a number to understand कि ये हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं। अब मुझे देखना है कि मैंने कितने यूनिट बेचे, तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि भाई अभी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन मैंने 100 का किया था, पिछले साल से जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ था 10, वो भी करंट ईयर में आया था, तो हमारे पास ड्यूरिंग द होल पीरियड 110 यूनिट होने चाहिए, क्योंकि 100 मैंने बनाए थे और 10 मेरा ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस पीरियड से मेरे पास आया था। तो मेरे पास अगर मैं चेक करूं आज तो 110 यूनिट होने चाहिए, लेकिन जब हमने देखा तो हमारे पास क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था सिर्फ 20 यूनिट्स का। तो भाई जो होने चाहिए थे 110, उसकी जगह पे है कितने? सिर्फ 20। दैट मीन्स 90 यूनिट्स हैव बीन sold. 90 units have been sold. See, meanwhile, whenever I'm discussing, no, I'll ensure that मैं ज्यादा स्पीड में नहीं जाऊं. So whenever you feel this is an extract of nothing but your module itself, so please try to keep your module with you, because अब practical question करेंगे, अगर आपके पास वहां पे बुक नहीं है ना, तो मॉड्यूल अगर नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड कैसे करना नहीं पता है तो आज व्हाट्सएप में मैं लेटेस्ट जो मॉड्यूल है कॉस्टिंग का मैं व्हाट्सएप में डाल भी दूंगा। यू प्लीज हैव इट योरसेल्फ, एटलीस्ट ये चैप्टर का प्रिंट निकाल के रखना। अगर आपके पास अभी तक मॉड्यूल नहीं आया है तो अगर प्रिंट निकाल के रखोगे तो क्या होगा, आपको अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। अगर आप पैम्पलेट यहाँ से कलेक्ट नहीं कर पाते हो, आफ्टर 2-3 डेज के बाद आज मैं आपको मॉड्यूल भेज दूंगा। सो नाउ अंडरस्टैंड the basic purpose which I was trying to make you understand was that why the hell we need to give these adjustments relating to the stocks. The reason is my profitability is depending upon the number of units that I'm selling and not the number of units which I have produced. So what we have calculated here is something relating to the production. यहाँ पे जो हमने calculate किया है, this is a number of unit produced के हिसाब से जो हमने cost find किया है वो है, जबकि मुझे चाहिए कॉस्ट चाहिए मुझे, लेकिन किसकी कॉस्ट चाहिए? नॉट द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच वी हैव प्रोड्यूस्ड बट द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच वी हैव सोल्ड। एंड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच वी हैव सोल्ड आई नीड टू डू एन एडजस्टमेंट फॉर द स्टॉक। देयरफॉर द ओपनिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। सो यहां तक तो क्यों करते हैं वो है। अब वापिस एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा, ये जो 10 यूनिट है उसका जो वैल्यूएशन होगा वो आपके प्रीवियस कॉस्ट के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 यूनिट आपने बनाए हैं वो करंट पीरियड में नहीं बनाए, वो आपके पास आगे वाले पीरियड से, वो आगे वाला पीरियड, आगे वाला क्वार्टर भी हो सकता है, पिछला ईयर भी हो सकता है, पिछला मंथ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पीरियड से उसको लेके आते हो। तो आप जो पीरियड से उसको लेके आते हो वो पीरियड में जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी, तो ये 10 यूनिट को वो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई करना, करंट पीरियड से मत करना, क्योंकि ये 10 यूनिट हमने हमारे करंट पीरियड में नहीं बनाए हैं। ये जो 10 यूनिट है हमने हमारे प्रीवियस पीरियड में बनाए थे। तो प्रीवियस पीरियड में हमने जितना कॉस्ट इनकर किया था
वो यहाँ पे आना चाहिए. Therefore, this is to be valued at cost of the previous period's production. While the closing stock, if I'm using FIFO, which is a valid method of using, I'm using FIFO. तो आज की डेट में अगर मेरे पास, what is the FIFO? You know that, ना? First in, first out. So आज की डेट में आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, वो क्लोजिंग स्टॉक अगर हम FIFO यूज करते हैं, so that must be coming out of the production of the current period. क्योंकि आपने जब बेचना चालू किया होगा तो पहले ये 10 यूनिट बेचे होंगे, उसके बाद 100 में से बेचना चालू किया होगा. तो आपके पास जो 20 यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ होगा, वो कहां से आया होगा? वो करंट पीरियड के प्रोडक्शन में से आया होगा. एंड दैट इज द रीजन द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट पीरियड्स कॉस्ट. Am I clear on this? If we are doing an adjustment up to this, we would be having cost of goods sold. So प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. अब यहाँ पे क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराया था, तो देयर वुड बी सम अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऑफ अ फिक्स ओवरहेड, व्हिच आई नीड टू डू एन एडजस्टमेंट हियर. अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि कब ऐड करें कब डिडक्ट करें, तो आगे क्वेश्चन आएगा, तब शांति से हम करेंगे, तब समझ में आ जाएगा. अभी जिस फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक बार आपने स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया तो दैट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसमें आपको अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऑफ द फिक्स ओवरहेड, प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड का एडजस्टमेंट देना है. एंड देन यू नीड टू ऐड योर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. दैट विल ब्रिंग यू द टोटल कॉस्ट. सेल्स से हमने स्टार्ट किया था, so that is how you're going to find out the profit. This is what you're going to do under the absorption costing method. Now anyone has any doubt under absorption costing method में ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको किसी को कोई डाउट है? आवाज तो आ रही है ना मेरी, तो डाउट तभी आएगा जब आवाज मेरी आए. I'm audible to everyone, no? Yes, sir. Voice is clear, no? Connectivity कोई दिक्कत नहीं है ना आज? No, sir. Good. So this is what you are supposed to do under an absorption costing method. So when you are not asking question, I will assume that you understood everything. Moving further, the same income statement if I need to prepare under the marginal costing method, अगर मुझे marginal costing method में ये same statement अगर मुझे बनाना है, तो क्या changes आएंगे उसमें? Please understand. यहाँ पे आपका फंक्शन जो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट था, उसका नाम ही सीधा चेंज होके क्या हो गया है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स. लेकिन हम उसमें से क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो उसमें से हम सिर्फ क्या लेंगे? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे. And we will try to give an adjustment of an opening stock and the closing stock in the way in which we are used to do. We will find out again the cost of goods sold. फिर variable administration and selling and distribution cost को डिडक्ट करेंगे. सारे वेरिएबल ही पहले डिडक्ट करेंगे. एक बार वेरिएबल डिडक्ट कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा कंट्रीब्यूशन. उसमें से सारी फिक्स कॉस्ट, वो प्रोडक्शन की हो, एडमिन की हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो, सारी फिक्स कॉस्ट को हम लास्ट में डिडक्ट करेंगे. तो पहले सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, पहला सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन. We need to understand the term, what is the meaning of the contribution. So let's first understand the meaning of contribution and how it would be calculated, and then again we'll come back to this particular statement so that we can have a more better idea. So now understand what is a contribution. हमारा marginal costing में आप किसी भी क्वेश्चन में अगर अटकते हो, कुछ भी दिक्कत आती है, so अगर आप ये इक्वेशन बनाओगे तो ये इक्वेशन से आपके सारे प्रॉब्लम, डाउट्स, क्वेश्चन में कहीं पे अटके भी हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. बहुत ही सिंपल है. We need to start with the sales. So if this is a sales amount, out of which we are going to deduct variable cost. वेरिएबल कॉस्ट, सारी वेरिएबल कॉस्ट को मैंने डिडक्ट कर दिया, सारी. यहाँ पे कोई मैं सेग्रीगेशन ही नहीं किया है कि कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है. और हमें जो मिलेगा दैट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज कंट्रीब्यूशन. दिस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन.
और वो कंट्रीब्यूशन में से हम डिडक्ट करेंगे हमारी जो सारी फिक्स कॉस्ट है वो, एंड एट द एंड वी वुड बी कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और द लॉस एज द केस में बी। ये स्टेटमेंट अगर आप बनाते हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा है, ब्रेक इवन फाइंड करना पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, पीवी रेशियो पूछा है, कुछ भी आपको क्वेश्चन ने पूछा है, अगर वो इंफॉर्मेशन को आप ये फॉर्मेट में प्लॉट करके फिगर्स को रखोगे, आपको ऑटोमेटिक सारे आंसर मिलेंगे। तो अगर एक एग्जांपल हमें लेना है, बहुत ध्यान से समझना, कंट्रीब्यूशन क्या है वो मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारा सेल्स है 1 lakh rupees. Sales is, for example, 1 lakh rupees. Our variable cost is, for example, 60,000 rupees. Therefore, the contribution which we are generating would be 40,000. For example, the fixed cost is 30,000, and therefore we would be getting a profit of 10,000. So now understand what is the meaning of the term called a contribution. What is the meaning of term contribute? It is not a profit, it is a contribution. Contribution मतलब क्या, तुम समझोगे। अगर हमें कहीं पे घूमने जाना है, 4-5 दोस्तों को मिलके कहीं पे घूमने जाना, तो हम क्या करेंगे, सबको बोलेंगे भाई everyone on the first day will find out an estimated cost of the trip, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ट्रिप का फाइंड करके सबको बोल देंगे कि भाई हर एक बंदा 5-5 हजार रुपए दे दो, कंट्रीब्यूट कर दो, अपना कंट्रीब्यूट कर दो। ये कंट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉफिट, दिस कंट्रीब्यूशन इज नॉट रेवेन्यू, दिस कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ रिकवरी ऑफ एन एक्सपेंसेस व्हिच वी आर अबाउट टू इनकर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में भी कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट a contribution which has been generated, ध्यान से समझना, contribution which has been generated by this sales। किसने जनरेट किया है? ये सेल्स ने इतना कंट्रीब्यूट जनरेट किया, क्योंकि सेल्स इज नॉट इक्वल टू माय प्रॉफिट। सेल्स ने इतना कंट्रीब्यूशन जनरेट किया है 40,000 का, 1 लाख का हमने सेल्स किया, तो हमने कितना पैसा बचाया उसमें से, क्योंकि ये वेरिएबल जो कॉस्ट है दिस इज अनअवॉइडेबल। वेरिएबल कॉस्ट तो इधर होगी ही होगी, आप जितना सेल करते जाओगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी बढ़ती ही जाएगी। तो ये 1 लाख का जो सेल्स है उसने कितना कंट्रीब्यूट जनरेट किया है? ये 1 लाख के सेल्स ने कंट्रीब्यूशन जनरेट किया है 40,000 का। अब ये कंट्रीब्यूशन का काम क्या होगा? कंट्रीब्यूशन का काम होगा कि वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज नॉट माय प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का काम क्या है? फिक्स कॉस्ट को भाई आप रिकवर करो। तो फिक्स कॉस्ट थी हमारी 30,000, कंट्रीब्यूशन सेल्स ने हमें जनरेट करके दिया था वो था 40,000, फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो गई, एंड दैट इज द रीजन दिस इज एन एलिमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन व्हिच रिमेन आफ्टर यूटिलाइजिंग फॉर एन फिक्स कॉस्ट व्हिच बिकम्स एन प्रॉफिट। सो अगर आपको कंट्रीब्यूशन को सेग्रीगेट करना है तो कंट्रीब्यूशन विल बी सेग्रीगेटेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, अनदर पार्ट इज अ प्रॉफिट। कैसे? हमारे यही वाला एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन था जो 40,000 का, उसका आगे जाके ही नाम बदल गया। एक हुआ क्या? रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो वो फिक्स कॉस्ट पे रिकवरी के लिए 40,000 यूज हुए, 40,000 में से 30,000 फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में से यूज हुए, और जो बैलेंस बचा 10,000 का, वही हमारा आगे जाके प्रॉफिट बना। सो जो कोई भी प्रॉफिट बनता है दैट इज कमिंग नथिंग बट आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, व्हाटएवर रिमेन्स आफ्टर absorption or adjustment or deduction for a fixed cost। जितना आपने एडजस्ट किया उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन बचा आपका, उस कंट्रीब्यूशन का ही नाम होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम अ कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ। सो इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत सारे ना हमें
इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करने, कोई भी बिजनेस में अगर आप कंट्रीब्यूशन ही पॉजिटिव जनरेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या कि आपका सेल्स हो रहा है 1 लाख का, आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी 1,10,000 की, आपका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है 10,000, तो वो बिजनेस कभी करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिकवर एनीथिंग आउट ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट, यू आर नॉट एबल टू रिकवर एनीथिंग आउट ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट. So you should not do any business where your contribution is not positive. Contribution का वापस से काम क्या है? Contribution का काम है फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने इंकर कर दी है उसको ओवरकम करे, रिकवर करे, so that you would be able to generate a profit. So that you would be able to generate a profit. Am I clear on this? और ये contribution, ये तो हमने अमाउंट टर्म में फाइंड किया, ये कंट्रीब्यूशन हमने कैसे फाइंड किया है? अमाउंट में फाइंड किया है. दिस कंट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन अ पर यूनिट बेसिस. आपको अगर पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो आप पर यूनिट बेसिस पे भी ये कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? बाय डिवाइडिंग विद द नंबर ऑफ यूनिट. लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पूरी ही रहेगी क्योंकि देयर इज एन अमाउंट व्हिच इज अ फिक्स. सो अगर मुझे कन्वर्ट करना है 40,000 के कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच आई हैव प्रोड्यूस्ड इज और आई हैव सोल्ड इज 10,000 यूनिट्स, देन द कंट्रीब्यूशन वुड बी रुपीस 4 पर यूनिट. रुपीस 4 पर यूनिट. तो हर एक यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट किया? 4 रुपए. अब आप सोचोगे ये कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो पे नहीं आता हूं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं. ये कंट्रीब्यूशन हमें डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज दैट इज एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मैनेजरियल स्किल डेवलप करना इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, कि आप डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करोगे, ये आपको डिसीजन मेकिंग में और कौन से टाइप के डिसीजन मेकिंग में आपको ये यूजफुल रहेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. आई अगेन पुट एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, you have to decide between product X and product Y. इसमें से कोई एक ही प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करके उसको प्रोड्यूस करके आप बेच सकते हो. कितने यूनिट बेचोगे वो भी आपको भी पता नहीं है कि आप कितने यूनिट बेचोगे. आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूं which would be more profitable to me, which can maximize my profitability. सिर्फ उतना ही हमें सिलेक्ट करना है between X and Y. कैसे करेंगे हम? By using the contribution. For example, selling price per unit of product X is 100. Selling price of Y is also 100. For a simplicity, for a simple understanding, I'm keeping the same price. दोनों का selling price 100 ही है. लेकिन अगर variable cost per unit देखें हम, तो product X की variable cost per unit is 60 rupees, while the variable cost of product Y is 70 rupees, and therefore contribution per unit X कितना जनरेट करके देता है? X 40 रुपीस का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जनरेट करके देता है, जबकि Y कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जनरेट करके देता है? 30 रुपीस का. तो कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? X would be more profitable to me, so I should produce X. Are you getting? ये तो एग्जांपल हुआ जहां पे दोनों की सेलिंग प्राइस सेम रहती है, अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम नहीं है फिर भी आपको ये यूजफुल हो सकता है. सो वापस अगेन, देयर आर टू प्रोडक्ट A and B. Product A has a selling price of, for example, 1,000 rupees. Product B has a selling price of only 400 rupees. Variable cost per unit of product A is 800 rupees. Variable cost of product B, for example, is 150 rupees. So now again I'll check how much contribution we are able to generate. यहाँ पे we would be able to generate a contribution per unit of 200 rupees. यहाँ पे we would be able to generate 250 rupees contribution per unit. Which product should be selected? The product which has higher contribution, that product should be selected. क्यों? Can anyone tell me the reason? क्यों हमें ये 250 वाले को B को सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों दूसरे किसी को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए? सर क्योंकि
उतने जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो उतने ज्यादा फिक्स कॉस्ट हम रिकवर कर सकेंगे और ओके, उतना गुड ज्यादा प्रॉफिट होगा। गुड गुड उर्वश, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? प्लीज अंडरस्टैंड, कल जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, आप 10 रुपए की नोट भी छाप सकते हो, आप 2000 की नोट भी छाप सकते हो, तो हम सिलेक्ट करते थे 2000 वाली। सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हियर कि जब आप एक यूनिट बना के जब 250 कमा सकते हो, तो एक यूनिट बना के 200 वाला कमाओ, वो क्यों सिलेक्ट करें हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 250 वाला। लेकिन यहाँ पे हमने एक फंडामेंटल अजम्पशन किया है। क्या अजम्पशन किया है? कि जितना टाइम ए बनाने में लगेगा उतना ही टाइम बी को बनाने में लगेगा। आप समझ रहे हो? वो एक एजम्पशन के साथ हम चल रहे हैं। सो अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करना है, इफ यू डोंट हैव एनी लिमिटेशन और एनी लिमिटिंग फैक्टर, देन यू शुड सिलेक्ट द प्रोडक्ट which has higher contribution per unit, which has a higher contribution per unit. and contribution का काम क्या होता है? contribution का काम होता है फिक्स ओवरहेड को रिकवर करना, so that you can maximize your profitability. कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, किस तरीके से आता है, वो हमने यहाँ पे देखा। दैट कंट्रीब्यूशन, ध्यान से समझो अभी, अगर मुझे चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है ना, पूरा चार्ट फॉर्म में समझो। ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म में समझा था, अब उसको हम चार्ट फॉर्म में समझते हैं, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कहां से? हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है सेल्स से। सेल्स के ही दो पार्ट पढ़े थे पहले। सेल्स का एक पार्ट था, वो किसके सामने खर्च हो गया था? वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के सामने। जो बाकी रहा था वो क्या था? हमारा कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन का आगे यूज हुआ क्योंकि ये बैलेंस पड़ा रहा। सो हमारे केस में वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद सेल्स ऑफ 1 लाख। उसमें से 60,000 तो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने में चले गए, और बैलेंस जो बचा था 40,000 का, वो बना था हमारा कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन भी किसके लिए पहले यूज होगा? फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, और जो बैलेंस बचेगा उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। जो बैलेंस बचता है उसे क्या हम बोलते हैं? प्रॉफिट। तो उसमें से 40,000 में से 10,000 हमारे रिकवर हुए थे। आई एम नॉट सॉरी नॉट 10,000, 30,000. यस 30,000। 30,000 जो हमारे यूज हुए थे, वो रिकवर करने के लिए यूज हुए थे फिक्स कॉस्ट को। और जो अब बैलेंस बचा था, नाउ व्हाटएवर इज अ बैलेंस, दैट बैलेंस ऑफ 10,000 इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। तो अगर आप पूरे सेल्स को समझो ना, पूरे सेल्स को समझो, तो ये 1 लाख का ही पार्ट है आपका कंट्रीब्यूशन, और उसी का ये आगे का पार्ट है 10,000 का। तो हम अगर बोले कि प्रॉफिट कहां से आ रहा है, तो प्रॉफिट भी सीधा आ रहा है सेल्स में से ही, लेकिन आफ्टर डूइंग एन एडजस्टमेंट फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट, whatever is remaining, that is known as your profit. तो ये 10,000 का ओरिजिनल दादा कौन है? तो वो है सेल्स। उसी में से ये 10,000 उसी में से आए हैं, वो 1 लाख में से ही आए हैं। जो बचा अमाउंट उसी को हमने प्रॉफिट बोला था। अब यहाँ पे हम ट्राई टू अंडरस्टैंड करने का हम ट्राई करेंगे कि ऐसा कोई जरिया है जिससे कि हम ये जो अलग अलग फिगर्स हैं, कौन कौन सी फिगर्स है, वापस से मैं इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन क्या था हमारा? सेल्स से हमने स्टार्ट किया था, वेरिएबल कॉस्ट को हमने डिडक्ट किया था, उससे जो हमें मिलता था उसको हम बोलते थे कंट्रीब्यूशन। उसमें से हमने डिडक्ट किया था फिक्स कॉस्ट, एंड वी हैव अ प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम ये इक्वेशन में ये जो अलग अलग फिगर्स आ रही हैं उसको एक दूसरे से कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाए मैथमेटिकली, कोई इक्वेशन बना के? क्या ऐसा कोई जरिया है?
जिससे हम कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाए, सो दैट हमें ये पूरा कैलकुलेशन हर बार ना करना पड़े। और वही सोच की वजह से एक रेशियो क्रिएट हुआ, वो रेशियो का नाम है नथिंग बट अ पीवी रेशियो। यू कैन से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और यू कैन ऑल्सो, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है पीवी रेशियो, या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट एज अ कंट्रीब्यूशन रेशियो। सो आपको एग्जाम में अगर अलग अलग नाम देते हैं तो कंफ्यूज मत होना, ये तीनों चीजें सेम ही है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन रेशियो। सो नाउ अंडरस्टैंड अगेन, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। तो जब हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का ट्राई किया, तब हमें एक चीज पता चली। क्या चीज पता चली? कि वेरिएबल जो कॉस्ट है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी विथ अ सेल्स। जितना सेल्स बढ़ेगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जितना सेल्स कम होगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती जाएगी। एंड देयरफॉर अगर मुझे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है इसके बीच में, कॉस्ट के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं। आई एम इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। अगर मुझे सेल्स की अमाउंट पता चले तो मैं सीधा कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकूं। सी दे आर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू कि आपको सीधा सेल्स पता चले तो आप कंट्रीब्यूशन सीधा फाइंड कर लो। फिक्स कॉस्ट तो हमें पता ही होती है क्योंकि वो तो फिक्स अमाउंट ही है, तो फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट करके बैठे हुए रहते हैं। तो हम इमीडिएटली हमारा प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वी डिड नॉट रिक्वायर टू अगेन एंड अगेन डू द कैलकुलेशन एवरीथिंग। आप क्विकली फाइंड कर सकते हो आपको प्रॉफिट कितना होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट की अमाउंट फिक्स थी जो सेम ही रहने वाली पूरे साल। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन रेशियो फाइंड कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन अगर आपने फाइंड कर लिया, और ये मैथमेटिकली आप फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी या कम होगी जितने प्रोपोर्शन में आपका सेल्स और बढ़ेगा या कम होगा। तो एक रिलेशनशिप यहां तक हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम सीधा सेल्स से प्रॉफिट का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है सेल्स के साथ चेंज होना, फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है बिल्कुल ही चेंज नहीं होना। तो दोनों का अलग अलग बिहेवियर है, बीच में जो एलिमेंट आते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, दोनों का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। तो हम कोई एक इक्वेशन बना के सीधा प्रॉफिट फाइंड नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर वी हैव टू स्टॉप एट कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ। तो आप सेल्स से सीधा पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट फिक्स होती है तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकोगे कि ये सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा क्विकली। सो ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इट इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स विथ अ कंट्रीब्यूशन। सो देयरफॉर द रेशियो इज contribution upon sales into 100. Now understand, whenever we multiply with 100 is a cent. तो आंसर जो आपको यहाँ पे मिलता है वो परसेंटेज में ही मिलता है। अगर आप किसी भी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो परसेंटेज में मिलता है, परसेंट। परसेंट मतलब क्या? पर 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एवरी 100। सो इन आवर एग्जांपल यहां पे हमारा सेल्स था 1 लाख रुपए का, एक जीरो ज्यादा हो गया, नहीं बराबर है। कंट्रीब्यूशन था 40,000 रुपीज का, तो हमारा पीवी रेशियो क्या रहेगा? इट वुड बी 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख into 100. So PV ratio would be 40%. अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.4। उसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपी ऑफ सेल्स विल जनरेट 40 पैसा कंट्रीब्यूशन। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 रुपीज ऑफ सेल्स विल जनरेट 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन। सो वो आप पे है, आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो। फॉर्मूला इज ऑन परसेंटेज बेसिस, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर योर आंसर व्हाटएवर यू आर गेटिंग वुड बी इन अ परसेंटेज। सो ये है हमारा इक्वेशन टू फाइंड आउट पीवी रेशियो। एक तरीका है जिससे कि हम पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?
Up to this, anyone has any doubt or any questions? That how we calculated a PV ratio. Does anyone has any doubt? No doubt, no? Very good. So now let's understand. दूसरा कौन सा तरीका है पीवी रेशियो को फाइंड करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा जो आगे हमें बहुत ही यूजफुल होने वाला है. सो बहुत ध्यान से समझना कि दूसरा कौन सा तरीका है पीवी रेशियो को फाइंड करना, बिकॉज आपके एग्जाम में जो आपको एग्जाम्पल शायद आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे आपको फॉर्मूला यूज करनी होगी. तो बहुत बार क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है. उसके लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना है. लेट्स अंडरस्टैंड. पूरा चैप्टर ना यही इक्वेशन के गोल गोल घूम रहा है. सो प्लीज अगेन अंडरस्टैंड. सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. हम दो अलग सिचुएशन लेते हैं किसी एक कंपनी की. एक सिचुएशन है जहां पे उसने सेल्स किया है 1 लाख का. दूसरी सिचुएशन है जहां पे उसने सेल्स किया है 2 लाख का. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट है यहां पे उसकी 40,000. नॉट 40, विल कीप द सेम 60 वाला, तो कंट्रीब्यूशन हमारा सेम रहे. दिस इज 60,000. ये था 2 लाख. Therefore, the contribution which we have generated is 40,000. Fixed cost था हमारा 30,000. And therefore, the profit which we have generated was 10,000 rupees. Fine. अब किसी एक कंपनी ने अगर 1 लाख का सेल्स किया तो वो जनरेट कर रहा है कितना कंट्रीब्यूशन 40,000. अगर उसने 2 लाख का सेल्स किया तो कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा बताओ मुझे. 80,000. सबीना कितना Yes. कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा वो? Sir, 1,20,000. कितना? कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा सबीना? 1,20,000. 1,20,000. सर 1,40,000. कौन जो 1,40,000? ध्यान. यस ध्यान सीधा जो ऊपर से ध्यान. सर 80,000. 80,000. 80,000. सचिन Sir, 80,000. गुड. 1,20,000. 1,20,000. हाँ बोलो. सर आप क्वेश्चन Sir, रिपीट कर six. सकते हैं? सॉरी. मेरा क्या आप नहीं। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मेरा वो इंटरनेट ब्रेक हो गया था, इसलिए समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन क्या था. आपको ये सिचुएशन दिख रहा है? दिख रहा है ये? यस सर. 1 लाख के सेल्स पे अगर मैंने कंट्रीब्यूशन 40,000 जनरेट किया है तो 2 लाख के सेल्स पे मैं कंट्रीब्यूशन कितना जनरेट करूंगा? वो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा. हेलो सर. सिद्धार्थ. सर 80,000. ओके. सिद्धार्थ 80,000 सर. रईस. सर 80,000 क्योंकि कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो अगर निकाले तो 40% आता है वेरी गुड. पहले साल का. वेरी गुड. दूसरे साल का हम निकाला तो 80,000. वेरी गुड. सी आपका अगर ये पीवी रेशियो आप निकालोगे तो है 40%. हाँ, क्योंकि जैसे आपका सेल्स बढ़ा है यहाँ पे तो वैसे ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ेगी ना. आर यू गेटिंग? अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल होगा. तो जितने ने आंसर दिया 120, वो आपका आंसर सही है, लेकिन वो होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट. वो आपको कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो आपका क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट.
therefore the contribution, मेरा क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन था, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड, मैं वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछ रहा था, मैं आपको आंसर पूछ रहा था कंट्रीब्यूशन के लिए. So therefore the contribution that you are going to generate would be 80,000. Am I clear? अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? सर वो तो फिक्स है. 30,000. फिक्स ही Fixed रहेगा. cost is something which remains fixed at all the levels. So 30. So therefore, now the profit which we would be generating would be 50,000 rupees. कितना प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे? 50,000 rupees. Now you already calculated this as a 40%. कैसे हमने कैलकुलेट किया था? Contribution upon sales into 100. ये एक फॉर्मूला थी जिसने आपको बताया कि it would be 40%. अब दूसरी फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर सेल्स नहीं दिया है या फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी है तो आप कैसे फाइंड करोगे? चेंज इन अ प्रॉफिट अपॉन चेंज इन अ सेल्स इनटू 100. अब ये सिचुएशन आप ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास ये कंपैरेटिव फिगर्स हैं. हाँ, तो क्या हो रहा है? चेंज इन अ प्रॉफिट. चेंज इन अ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10,000 से बढ़ के वो 50,000. सो चेंज इन अ प्रॉफिट इज 40,000. कैसे आया 40,000? आई होप यू अंडरस्टूड. 50,000 माइनस 10,000. चेंज इन अ प्रॉफिट कितना चेंज आया? 40,000 का चेंज आया. डिवाइड बाय चेंज इन अ सेल्स. सेल्स में कितना चेंज आया? 1 लाख का. 2 लाख माइनस 1 लाख कितना आया? 1 लाख इंटू 100. वापिस आंसर क्या आया? 40%. तो अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है सिर्फ प्रॉफिट और सेल्स की, तब भी आप पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो. आपके पास अगर सिर्फ सेल्स बोला होता कि भाई एक सिचुएशन में सेल्स है 1 लाख, दूसरे सिचुएशन में 2 लाख और प्रॉफिट है 10,000 50,000 रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ, स्टिल यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट अ कंट्रीब्यूशन. तो ये हुई हमारा पहली फॉर्मूला जिससे कि हम पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं. ये हुई हमारी दूसरी फॉर्मूला जिससे कि हम पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं. अब आते हैं हमारी तीसरी फॉर्मूला, दैट इज चेंज. और ये ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं. चेंज इन अ कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन अ सेल्स इनटू 100. तो वापस से सेम चीज करेंगे अब, लेकिन कंट्रीब्यूशन से. व्हाट इज अ चेंज इन अ कंट्रीब्यूशन? 80,000 minus 40,000. 80,000 minus 40,000. So change in a contribution is 40,000 divided by change in the sales. तो already हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1 लाख का. So that comes to 1 lakh into 100. Again your answer is 40%. तो आप ये मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. आप इसमें से कोई भी मेथड यूज करके अपना पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हो. और पीवी रेशियो क्यों फाइंड करते हैं? फॉर क्विक कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट इन पर्टिकुलर सिचुएशन. क्योंकि रियल लाइफ में आपको क्विक डिसीजन लेना होता है कि ये आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे या नहीं करोगे. फटाफट आप आंसर करो कि आप ये प्राइस पे, आपको कोई बोल रहा है कि आप मेरे लिए काम करोगे, ये प्रोडक्ट आप इतने प्राइस में हमें दोगे, तो आपको उसको क्विकली रिप्लाई करना होता है हाँ या ना, करेंगे या नहीं करेंगे. एंड दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? दैट डिपेंड्स अपॉन कि भाई आप वो पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉफिट करोगे या नहीं करोगे. एंड आई एम टेलिंग यू, आई होप एवरीवन, सब नोटबुक खोल के बैठे हो ना, क्योंकि ये सारी चीजें ना मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यू हैव अ रिकॉर्डेड सेशन, बट अगेन एंड अगेन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे एप्लीकेशन में लेक्चर वापस देखने में. आप आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन साथ में ही मैं उतना स्पीड में नहीं लिख रहा हूँ, साथ में ही मेरे साथ ही आप लिखते जाना, सो दैट आप अगर अंडरस्टैंड करते करते लिखते जा रहे हो ना तो आसानी से फिर आपको याद रह जाएगा. एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. फाइन. सो साथ में ही लिखते जाना. तो ये हुआ हमारा पीवी रेशियो. कंट्रीब्यूशन किस लिए फाइंड करना था हमें? लेट्स रिवाइज इट अ बिट. कंट्रीब्यूशन हम क्यों फाइंड करते हैं? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे कंट्रीब्यूशन क्या होता है? What is a contribution? What is the meaning of contribution?
अच्छा, स्वीकार करना है मुझे। Recovery of expense. रिकवरी ऑफ एक्सपेंस को थोड़ा प्रिसाइज अगर हम बोले तो इट इज recover the fixed overhead. Fixed Ah, overhead, yes, good. fixed cost. गुड। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। अगर हमें कोई पूछता है कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या है, सो कंट्रीब्यूशन इज अ एलिमेंट ऑफ सेल्स। ये कोई डेफिनेशन नहीं है ऑक्सफोर्ड वाली, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से ये डेफिनेशन हमने बनाई। कहाँ से बनाई? तो हमने ये जो चार्ट अंडरस्टैंड किया था, कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ सेल्स which will contribute towards a recovery of fixed costs. So contribution is nothing but a contribution generated by a sales or amount which has been generated by a sales for what purpose? Towards recovery of fixed cost and generating a profit for an organization. So contribution किस लिए हम फाइंड करते हैं? For an easy decision making कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव रहा तो वो बिजनेस तो आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। सो देयरफॉर अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू बी केयरफुल व्हेनेवर यू टेकिंग डिसीजंस कि भाई कंट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। फाइन, एनीवन हैज एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? कंट्रीब्यूशन वाले तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? No, Siddharth sir. sir, No, can I say that contribution is sales minus variable cost? Can I put it like this in simpler words? हाँ, so that is more kind of an equation. This is मैंने ऐसे याद रखा है उसको. हाँ, Sales minus variable cost is my contribution. Yes. That is an equation. Yes, true. Yes, anyone else? कुछ बोल रहा था ना कोई बीच में? Does anyone has any doubts? No doubt. So today we'll start just with a startup of a break-even point. Or from day after tomorrow, we are also going to start with the law subject. So what I felt is कि 2 घंटों तक कंटिन्यूअस एक ही लेक्चर में एक ही सब्जेक्ट करना फॉर स्टूडेंट आपके लिए वो ज्यादा बोरिंग हो सकता है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, मैं आपको डे आफ्टर टुमारो का टाइमिंग भी दे दूंगा। जो स्टूडेंट बड़ौदा से हैं, दे कैन कलेक्ट द पैम्पलेट फ्रॉम द ऑफिस और यू कैन से क्लास। दोज हु आर लोकेटेड एल्सवेयर, देखो लॉ ना, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई नेवर यूज्ड टू टेक अ लॉ इन एन अर्लियर बैचेस। लॉ मैं पहली बार करा रहा हूँ। सो material, I normally don't prefer your module because it's given in very haphazard manner. Student might not be able to understand. तो लॉ के लिए जो मटेरियल है वो मैं इस बार ना चैप्टर वाइज बनाऊंगा। सो हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट से। तो पार्टनरशिप एक्ट का पैम्पलेट एक रेडी होगा। नॉर्मली जब आईडीटी में आप सेकंड ग्रुप में जब आओगे ना, तो आईडीटी की पूरी बुकलेट आपको मिल जाएगी पहले दिन से, उसमें सारे चैप्टर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि देयर इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, आई एम प्रिपेयरिंग अ मटेरियल चैप्टर वाइज। तो जो बड़ौदा के स्टूडेंट हैं उनके लिए इट वुड बी वेरी इजी टू कम एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द क्लासेस। जो स्टूडेंट बड़ौदा में नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस ना हो, जैसे कि 8-10 पेजेस हो या फिर 10-15 पेजेस हो ना, तो 10-15 पेजेस को मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे मेरे पैसे नहीं बचाने हैं। यू नीड टू टेल मी कि वैसे भी जो बाहर के स्टूडेंट है उनको मुझे डीटी की बुक तो भेजनी ही होगी। तो आप अगर उतना वेट कर सकते हो तो वो डीटी के बुक के साथ जितने जितने पैम्पलेट ड्यू हो चुके हैं वो सारे उस टाइम पे भेज दूंगा। या फिर आपको अगर स्टडी नहीं बिगाड़नी तो 10-15 पेजेस का भी ना प्रिंट आप खुद निकाल लो, दैट वुड बी मोर प्रेफरेबल। तो जब भी मैं आउट स्टेशन जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब मैं कुरियर करूंगा डीटी की बुक, पैम्पलेट तब आएंगे। अगर आप तब तक वेट नहीं करना चाहते हो तो 10-15 पेजेस के लिए यू प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, यू बेटर स्टार्ट टेकिंग प्रिंट आउट। 10-15 पेजेस में कुछ खर्चा नहीं होगा, 15-20 रुपए का खर्चा है, लेकिन आपकी स्टडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप मुझे बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब डीटी की बुक बेचूंगा, कॉस्टिंग की भी ये क्वेश्चन की बुक्स बेचूंगा, तब उसके साथ बेच सकता हूँ, लेकिन वो 1-2 बार ही आएगी। फिर आगे हमें चैप्टर वाइज पढ़ाई करनी है, तब मुझे वेट करना होगा कि 2-4 चैप्टर खत्म हो उसके बाद मटेरियल बेचूं, क्योंकि 10-10 पेज का कुरियर मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रिंट आउट से ज्यादा खर्चा
कुरियर का हो जाएगा, तो मैं रिइंबर्स करना प्रेफर करूंगा। अगर आपको मेरे से 20 रुपए की रिइंबर्समेंट चाहिए ना, तो आई प्रेफर दैट कि मैं आपको गूगल पे कर दूं rather than doing a courier. Now understand, we are going to start सर, with yes, सॉफ्ट कॉपी अगर आप शेयर कर दे तो हम लोग उसका हाँ, प्रिंट निकाल लेंगे obviously soft copy I can share, that is not an issue. जी। So we'll start, just आज थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट की ना कल हम अच्छे से धुलाई करेंगे, आज सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? सर नो प्रॉफिट नो लॉस। Very good. It is a situation where there is no profit, no loss. तो अगर यहाँ पे आपको ना कुछ पैसा मिल रहा है प्रॉफिट के नाम पे, ना आपको कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो ये फाइंड क्यों करना है? प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रेक इवन में क्यों इंटरेस्टेड है? क्यों फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट? वो तो हमें पता चला कि इट इज नथिंग बट अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, लेकिन इसका काम क्या राहुल? સર એટલીસ્ટ આફ્ટર વી ઓર જેટલા આપણે ગુડ્સ બનાવી દીધે પ્રોડક્શન થઈ ગયું તો આપણે મિનિમમ કેટલું સેલ્સ કરવું જોઈએ તો આપણો લોસ ના થાય એના માટે Very good. So break even point is based on a conservative approach whereby at the beginning of any period you can give a target to your sales department कि भाई तुझे जो करना है कर, इतने यूनिट बिकने चाहिए, क्योंकि अगर इतने यूनिट नहीं बिके तो हम लॉस करेंगे, इतना तेरा सेल्स का टारगेट होना चाहिए। सो ब्रेक इवन पॉइंट जो पॉइंट है ना, वो सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हम ध्यान से समझो। वो सिचुएशन इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। लेकिन जो ब्रेक इवन पॉइंट टर्मिनोलॉजी है ना, वो टर्मिनोलॉजी किसकी है? प्रॉफिट टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये है सेल्स टर्मिनोलॉजी। तो हम जो फाइंड करते हैं वो क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वापिस से हम तो सब चीज समझते हैं हमारी इक्वेशन से ही। तो हमारा इक्वेशन था क्या? इट स्टार्ट विद द सेल्स, उसमें से हम डिडक्ट करते थे वेरिएबल कॉस्ट को, तो जो हमें मिलता था उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें से हम डिडक्ट करते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट को, और जो हमें मिलता है वो होता है प्रॉफिट या तो लॉस। हमारा एग्जांपल था सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, which has generated a contribution of 40,000. If your fixed cost is also 40,000, then you would be a situation that where your profit is 0, or you can say that loss is also a 0. No profit, no loss. अब ध्यान से देखो आप, तो क्या हुआ यहाँ पे? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि फिक्स कॉस्ट अगर हमने ये इक्वेशन में रखा तो हमें क्या पता चला कि फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट अ सिचुएशन वेयर अ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर योर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट। तो ये है सिचुएशन वाइज अगर देखें हम, तो कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट जितना हो जाएगा उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करें? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सेल्स टर्मिनोलॉजी, तो इक्वेशन कुछ होगा, वो इक्वेशन कैसे हमें डिराइव करना है, किस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे कल भी 1 ही घंटे का लेक्चर रखूंगा, बिकॉज 1 घंटे से ज्यादा फिर ना कॉन्सेंट्रेट करना साइंटिफिकली इज आल्सो नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट। परसों से हम क्या करेंगे? परसों से हम 1 घंटे कॉस्टिंग करेंगे, उसके बाद आई गिव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट एंड देन अगेन विल स्टार्ट विद द लॉ सब्जेक्ट, सो दैट सब्जेक्ट भी चेंज होता है तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू यू इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन 2 घंटे इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी भी ये पहला है आपका, और जिसको लॉ का भी डेमो चाहिए क्योंकि सर भी पहली बार पढ़ा रहे हैं, समझ लो,
मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ लॉ, तो आपको भी समझ में आया कि भी लॉ पढ़ने जैसा है या नहीं है, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ, सो यू डोंट वरी, विल डू व्हाटएवर. नाउ एनीवन हैज एनी डाउट इन व्हाटएवर वी डिड टुडे? सर वो मार्जिनल कॉस्टिंग ना इनकम स्टेटमेंट पे जाइए ना सर, वो इनकम स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, या वो थोड़ा लिखना रह गया था. ओके, cost of goods sold. you don't worry, I will send this photograph in our group पे भेज दूंगा मैं. चलो, अगर लिखना है तो लिख लो, कोई बात नहीं. ओके सर, ओके. ठीक है. સર સર यस, સર Okay, આ sir. ટેબલમાં ડાઉટ છે સર. અહીંયા કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ પછી એડ કર્યું છે વેરિયેબલ એડમિનિસ્ટ્રેશન સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ, પછી ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ પછી ફરીથી એડ કર્યું છે સેલિંગ એન્ડ ऐड नहीं ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. करी बेटा, दिस इज अ समेशन ऑफ दिस टू. इन दोनों का जो समेशन है उसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. બરોબર. એડ નથી કર્યું, એની આગળ ક્યાં એડ એવું લખ્યું છે? ના ના આ એ નથી લખ્યું બરોબર, એટલે સમેશન છે. હા, આ પછી- બંનેનું સમેશન છે, અને સમેશન થઈને અહીંયા આવે એને કહેવાય ટોટલ વેરિએબલ કોસ્ટ. હા સર, અને ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ પછી ફરીથી કેમ એડ કર્યું છે સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ? કારણ કે એ પહેલા એડ થઈ ગયું હતું ને સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ ઓવરહેડ. છે વેરિએબલ કોસ્ટ. ઓકે ઓકે ઓકે, નાઉ અન્ડરસ્ટુડ. અહીંયા ખાલી એડમિનિસ્ટ્રેશન હોવું જોઈતું હતું, અહીંયા સેલિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નતો હોવું જોઈતું. આ ભૂલ છે, આ બબે વખત ના થવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ રોંગ. If you have already covered here selling and distribution, then this should again not happen. પાછું ના આવવું જોઈએ. This is wrong. Got it, Urvis? ये गलत है, ये लाइन पूरी गलत है. ગોટ ઇટ સર, થેન્ક યુ. Fakhruddin, done? Done sir, done. Thank you. Fine. So still, if anyone has any doubt, then you can ask. No doubt? નો સર, નો ડાઉટ. Fine then. We are meeting tomorrow morning 9:30 a.m. Lecture will be uploaded on a portal by evening. उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैं बोल के रखूं, बहुत बार फिर ना क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग कि अब तक क्यों नहीं होगा. Everyone is fine, no? I hope everyone doing well. You comfortable now with the teaching? Yes, sir. sir. Everyone? Anyone has any issues? Yes, sir. No, sir. મજા આવે સર, એકદમ મજા આવે. I hope આ મજા તમારી મન કરે છેલ્લે બેસ્યા રે સુધી આપણા ઘરમાં સામે. મન તો કરે છે બેસ્યા રે આપણા સાથે, સુનતા રહીએ, બટ આવી. હાર્ડ જોઈએ છે કેટલું બેસી રહે છે તું. સાહેબનો ફોન આવશે મીટિંગ માટે.